Hello everyone, welcome back to Learniverse. So we are here with the third video of the second chapter of class 11 biology, that is biological classification. And today we'll be discussing about kingdom fungi. So let's start with the kingdom fungi. We have already covered kingdom Monera and Protista in the previous videos. If you haven't watched them yet, I'll put the link in the description box. You can see it from there. So let's start with the kingdom fungi. You know that fungi are heterotrophic organisms. We have already read that Monera consists of prokaryotes while Protista consists of eukaryotes, and fungi also consist of eukaryotes. They are heterotrophic, that is, they do not synthesize their own food. It's a heterotrophic. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes. So what is the mode of nutrition of fungi? First of all, it's heterotrophic, and under heterotrophic they are saprophytes. Saprophytes are the organisms like they feed on the soluble organic matter that is from dead or decaying substances. Okay, this you have already covered in your lower classes as well. So they can also live as symbionts, matlab they live in a mutual association with algae in lichens where both of them are benefited by each other and with roots of higher plants such as mycorrhiza. ठीक है, मतलब इनके दो एसोसिएशन होते हैं, मतलब सिम्बाइंट्स के रूप में भी ये रहते हैं. फर्स्ट इज लाइकेन, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, while mycorrhiza is an association between fungi and roots of higher plants. ठीक है, a mode of reproduction is there. ठीक है, asexual reproduction जो होता है that occurs with the help of spores that are known as conidia और sporangiospores और zoospores. ठीक है, जो asexual reproduction होता है वो spores की help से होता है और spores इनके नाम है conidia, sporangiospores और zoospores के रूप में. And sexual reproduction is by oospores, ascospores and basidiospores. This जो इसकी फंजाई की फर्दर क्लासेस है ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सा रिप्रोडक्टिव मोड कौन से टाइप के फंजाई में प्रेजेंट होता है. ठीक है, the various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies. तो जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ना वो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, so the various spores are produced in distinct structures called the fruiting bodies. And इसका exception है एक जो है आपका yeast. yeast जो है वो यूनिसेल्यूलर फंजाई है, बाकी सारे आपके मल्टी सेल्यूलर फंजाई होते हैं, बट जो yeast है वो आपका यूनिसेल्यूलर फंजाई है. और इनकी जो बॉडी होती है उसमें लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाइफे कहते हैं. तो फंजाई जो होता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो जिनको हम हाइफे कहेंगे. और जो ये नेटवर्क होता है इन हाइफे का, इट इज नोन एज माइसीलियम. ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लो कि जो बॉडी होती है उसमें लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम हाइफे कहते हैं और network of hyphae is called as mycelium. So some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm and these are known as cenocytic hyphae. जिसमें multinucleated cytoplasm होता है, they are known as cenocytic hyphae. And others have septae or cross walls in their hyphae. And the cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. So ये आपका fungi का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम इसके फर्दर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जो सेक्सुअल साइकिल होती है फंजाई की उसमें 3 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स. तो जो 2 गैमीट्स है, मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, उनके जो प्रोटोप्लाज्म है उनका फ्यूजन होगा. दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा एंड इट इज नोन एज कैरियोगैमी. सो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी. ठीक है, एंड थर्ड इज मायोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. ठीक है, तो पहला आपका हो गया फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फिर होगा आपका फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई और उसके बाद आपका होगा मियोसिस इन जाइगोट. मियोसिस इज योर रिडक्टिव डिविजन.
ठीक है. So when a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types. तो जो दो compatible organisms हैं उनके जो haploid hyphae हैं, they come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid cells. अब देखो कुछ कुछ fungi में क्या होता है कि जो haploid cells का fusion है ना, उसके immediate बाद आपका जो ये है फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल. जो आपके टू हैप्लॉइड सेल्स का डिवीजन फ्यूजन है उससे एकदम से डिप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं. बट कुछ फंजाई में इसके एग्जांपल है स्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होती है. It is intervening dikaryotic stage in which n plus n, that is 2 nuclei per cell occurs, and such a condition is known as dikaryon. मतलब जो इसका फ्यूजन है ना न्यूक्लियाई का वो नहीं हुआ होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया होगा बट दोनों न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे और ये कुछ टाइम के लिए रहती है ये डाइकैरियोटिक स्टेज एंड इट इज नोन एज डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस. ठीक है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो इसको आप अच्छे से देख लेना. Later the parental nuclei fuse and the cells become diploid. तो बाद में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियाई हैं इनमें फ्यूजन हो जाएगा और सेल्स डिप्लॉयड हो जाएंगे, उसके बाद मेयोसिस हो जाएगी. ठीक है. रिडक्शन डिवीजन अकर, दैट इज मेयोसिस अकर एंड हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. So now next one we have phycomycetes. So I'm sorry for this, just a second. हाँ, फाइकोमाइसिटीज आपकी पहली क्लास है. ठीक है. फंजाई की इसके चार होते हैं बेसिकली: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ट्यूटेरोमाइसिटीज. ठीक है. तो हम एक एक करके उन सबको कवर करेंगे. Now members of phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. ये तो सिंपल है, बेसिक जो उनके हैबिटेट है उसके बारे में बताया गया है. तो इसका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है. अब देखो मैं इसमें ना जो जो आपका इंपॉर्टेंट है याद करने का उसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसको अलग से लिख लेना. तो पहले इसका इंफॉर्मेशन है माइसीलियम के उसमें, इट इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक. ठीक है. एंड एसेक्सुअल, अभी हमने माइसीलियम के बारे में पढ़ा था ना. माइसीलियम इज नेटवर्क ऑफ हाइफे. Network of hyphae is known as mycelium and mycelium is aseptate and cenocytic. Cenocytic मतलब multiple nuclei are present, that is multinucleated. ठीक है. asexual reproduction by zoospores. पहले मैंने आपको बताया था ना कितने टाइप के होते हैं. जूस्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स होते हैं. बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और oospores जो होते हैं वो आपके सेक्सुअल में काम आते हैं. बट जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स ये जो होते हैं आपके asexual reproduction में काम आते हैं. तो asexual reproduction takes place by zoospores, that is motile होते हैं zoospores, और aplanospores that are non-motile. ठीक है. And these spores are endogenously produced in sporangium. So these spores are present in sporangium. ये उतना important नहीं है वैसे, आप याद कर लो वैसे, but ठीक है. A zygospore is formed by the fusion of two gametes. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो गैमीट्स का फ्यूजन होता है उससे जाइगोस्पोर बनता है. दीज गैमीट्स आर सिमिलर, देखो उसमें सभी हैं, हर चांस दे रखा है ना, सिमिलर और डिसिमिलर. ठीक है. आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ऊगैमस आपको पता ही होगा. सिमिलर इज आइसोगैमस, डिसिमिलर इज एनाइसो और ऊगैमस. ठीक है. और इसका एग्जांपल याद कर लो आप अच्छे से: एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो. सो इसका एक्रोनिम आप बना सकते हो आम. ए से एल्ब्यूगो, आर से राइजोपस और एम से म्यूकर. ठीक है. तो हमारा इसके साथ फाइकोमाइसिटीज कवर हो गया. फाइकोमाइसिटीज में आपको क्या क्या याद करना है? द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक फर्स्ट. ठीक है. asexual reproduction by zoospores or aplanospores second, and zygospore is formed by fusion of two gametes third, and gametes are similar or dissimilar fourth, and last is example, that is arm, albugo, rhizopus and mucor. Okay, so moving ahead we have another
that is ascomycetes. This is your second class. ओके अब हम इसमें आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट याद करना है. इसमें देखो फर्स्ट चीज जो आपको याद करनी है, इट इज नोन एज सैक फंजाई. ठीक है, ये आप याद कर लो कि ascomycetes आर नोन एज सैक फंजाई. दे आर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर, एग्जांपल पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेल्यूलर, दैट इज यीस्ट. तो आप देख रहे हो यूनिसेल्यूलर यीस्ट और multicellular penicillium both comes under ascomycetes. ठीक है, and they are saprophytic, decomposers, parasitic और coprophilous. Coprophilous are that feeds on dung. ठीक है, mycelium आपको इससे पहले बताया था कि जो आपका फाइकोमाइसिटीज होता है उसका माइसीलियम कैसा होता है, याद है आपको? इट इज aseptate and sinusotic. इसका माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. उसका aseptate था, इसका septate है, मतलब septa will be present. Asexual spores are conidia and they are produced exogenously on special mycelium called conidiophores. इससे पहले वाले का क्या था? Asexual spores. They were endogenously produced. इसमें क्या है? Exogenously produced and are called conidia that are produced in conidiophores. ठीक है. Now conidia on germination produce mycelium. ठीक है, कोनिडिया के जर्मिनेशन से माइसीलियम प्रोड्यूस होता है. नाउ वी विल बी डूइंग सेक्सुअल स्पोर्स. दे आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स. इसके नाम से देख लो आप, एस्कोमाइसिटीज के एस्कोस्पोर्स, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली इन सैक लाइक एस्काई, दैट इज सिंगुलर इज एस्कस. ठीक है, जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एस्कोस्पोर्स, दे आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन एस्काई. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. Now these fruiting bodies are known as ascocarps. Examples are Aspergillus, claviceps and Neurospora. So Neurospora का use भी देखा है आपको. It is used in biochemical and genetic work, and many members like morels and truffles are edible. That is, इसको भी याद कर लो. Morels and truffles are also produced by kept in the ascomycetes. तो आपको पिछले वाले का मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म आर्म, इसका आप याद कर लो. कैन, claviceps, aspergillus and neurospora. ये आप याद कर लो. ठीक है, इसमें भी जो मैंने हाईलाइट किया वो आप अच्छे से याद कर लेना. मूविंग अहेड वी हैव बेसिडियोमाइसिटीज. इट इज कॉमनली नोन एज मशरूम्स. तो आपके जो मशरूम्स होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं. ठीक है, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स. तो आपके जो मशरूम्स होते हैं, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स होते हैं, सब बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं. दे ग्रो इन सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, और पैरासाइट्स के रूप में भी रहते हैं प्लांट बॉडीज में, जिसका एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट्स. ठीक है, अब इसका माइसीलियम इज अगेन ब्रांच्ड एंड सेप्टेट and asexual spores are not found. ठीक है, याद कर लेना. But vegetative reproduction by fragmentation is common. तो vegetative reproduction is present by fragmentation. ठीक है. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells. Sex organs नहीं होते हैं, but plasmogamy होती है जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स या वेजिटेटिव सेल्स की फ्यूजन से बनती है. ठीक है, सो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम. सो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो फ्यूजन से बनता है दैट इज डाइकैरियोटिक एंड इट फॉर्म्स बेसिडियम as its name. So karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. जो कैरियोगेमी होगा उसमें 4 बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं and the basidiospores are exogenously produced on the basidium. So basidiospores are produced on the basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. ठीक है, तो आपका सब सिमिलर ही होगा. बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियम, बेसिडिया, बेसिडियोकार्प्स,
और नेक्स्ट आर इसके एग्जाम्पल. सो इट इज फर्स्ट इज agaricus, second is astilago, third is puccinia that is rust fungi. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो APU. अब इसका कोई ऐसा मतलब कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं है बट ठीक है, इसको ऐसे ही कर लो, या आप इसको UPA की तरह भी याद कर सकते हो. ठीक है, अस्टिलागो, पक्सीनिया एंड अगैरिकस. ठीक है, तो आप इसमें भी हाइलाइटेड पार्ट्स याद कर लेना. नाउ विल बी मूविंग ऑन टू आवर लास्ट, दैट इज deuteromycetes. Deuteromycetes are commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases of this fungi are known. So they are the imperfect fungi because इनकी सिर्फ asexual और vegetative phase होती है. जैसे ही इनकी sexual forms बनने लगती हैं या डिस्कवर हो जाती हैं, they are two classes they rightly belong to. तो जब इनकी sexual stage आ जाती है तो they move to higher classes. ठीक है. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out to deuteromycetes. ठीक है. Once perfect sexual stages of members of deuteromycetes are discovered, they are often moved to esco and basidiomycetes. तो इसमें कोई ऐसा स्पेशलाइज वो नहीं होता है, ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज तक ये लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रहते हैं. बट जैसे इनकी सेक्सुअल स्टेजेस डिस्कवर होने लगती हैं, इनको हम एस्को बसिडियोमाइसिटीज में डाल देते हैं. So the deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia, and the mycelium is septate and branched. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter. They are the decomposers of litter and help in mineral cycling. उनके एग्जाम्पल आप याद कर लो कैट से. कैसे कैट से सी से क्या हो गया कोलेलोट्राइकम, ए से आपका हो गया अल्टरनेरिया एंड टी से हो गया आपका ट्राइकोडर्मा. ठीक है, सो ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया. एंड विद दिस वी आर डन विद द फंजाई. अब आगे हम आपके वायरसेस, वायरॉइड्स, लाइकेंस और प्रायॉन्स को कवर करेंगे. So before starting with the viruses and viroids, lichens, prions part, we'll be studying about the discoveries. ठीक है, तो Dmitry Ivanovsky recognized certain microbes as causal organisms of the mosaic diseases of tobacco. तो इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया था? माइक्रोब्स दैट आर द causal organism of tobacco mosaic virus. ठीक है. M.W. Bijurnik demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in the healthy plants. तो जो existing infection है वो healthy plants में भी infection कर सकता है. And जो इसका नया pathogen virus था, he called it Contagium vivum fluidum, that is infectious living fluid. Contagium is infectious, vivum fluidum is living fluid. ठीक है. W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins. So Dmitry Ivanovsky recognized certain microbes as causal organisms of TMV. Bijurnik demonstrated that extract of infected plants could infect the healthy plants and named the pathogen as Contagium vivum fluidum, while W.M. Stanley crystallized the viruses. So we'll be starting about the viruses. So viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cells. That is, outside the living cells, viruses are inert. ठीक है. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves. जैसे वो एक सेल के अंदर इन्फेक्शन करते हैं तो वो जो होस्ट की मशीनरी है ना उस सेल की, उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उसमें रेप्लिकेट करते हैं और इवेंचुअली होस्ट को किल कर देते हैं. दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल. So viruses are obligate parasites. In addition to proteins, viruses also contain genetic material that could either be RNA और DNA. या तो RNA होगा या DNA होगा. Viruses are obligate parasites, मतलब पूरे के पूरे वो डिपेंड करते हैं जो होस्ट होता है उस पे. ठीक है. So they do not have both RNA and DNA. तो या तो RNA ही होगा या DNA ही होगा. ठीक है.
So a virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. So in general, viruses that infect plants have single stranded RNA. इसको आप अच्छे से याद कर लो, जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है ना, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है उनके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए होता है. इसमें सारी पॉसिबिलिटीज है, बट जो प्लांट्स वाला होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं, दे आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस, दैट इज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. तो बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं, एंड दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस. तो ये आप अच्छे से याद कर लो, ये 3 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं. तो जो वायरस होता है उनका जो प्रोटीन कोड होता है, इट इज कॉल्ड कैप्सिड एंड इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स. सो आपका जो कैप्सिड होता है, जो प्रोटीन कोड होता है, दे आर मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स दैट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. सो और जो कैप्सोमियर्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स. And diseases such as mumps, smallpox, herpes, influenza, AIDS in animals or humans, and mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, vein clearing, dwarfing and stunted growth, all are caused by the viruses. So viruses बहुत खतरनाक होते हैं. आपको पता है viruses का जो खतरनाक, कितने खतरनाक हो सकते हैं. कोविड-19 को देख लीजिए, वो भी एक वायरस ही था, उसने कितना डिस्ट्रक्शन फैलाया पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. सो वायरसेस में आपको ये याद कर लो, प्लांट्स में कौन से होते हैं, एनिमल्स में कौन से होते हैं, बैक्टीरिया में कौन से होते हैं, प्रोटीन कोड क्या कहलाता है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, एंड इसके जो डिजीजेस विच दे कॉज. ठीक है. आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अभी वायरसेस का. ये देखो, मैंने आपको बताया था ना, प्रोटीन कोड, इट इज नोन एज कैप्सिड्स एंड इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स. दिस इज अ टीएमवी, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस. तो देखो, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है आपका, इट इज आरएनए. दीज आर योर कैप्सिड, और ये कैप्सोमियर्स से बने होते हैं. ठीक है. दिस इज योर बैक्टीरियोफेज. ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लो, ये आता है. इट इज योर हेड. ये आपका हेड है, वायरस का हेड है, आपका हेड नहीं है, सॉरी. दिस इज द हेड ऑफ द वायरस और बैक्टीरियोफेज, सॉरी. दिस इज अ कॉलर, दिस इज शीथ एंड दीज आर टेल फाइबर्स. ठीक है. ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लो दोनों, ये इंपॉर्टेंट है. Next we'll cover viroids and prions. I'm so sorry, ये lines इतनी टेढ़ी पता नहीं क्यों होती हैं. In 1971, Theo Diner discovered new infectious agent that was smaller than viruses. ठीक है. Theo Diner ने discover किया एक infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. तो ही डिस्कवर्ड अ इन्फेक्शियस एजेंट जिसका साइज जो था वायरस से छोटा था, और वो एक डिजीज कॉज करता था, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए. समझ रहे हो, इट इज अ फ्री आरएनए, दैट इज प्रोटीन कोड उसमें एब्सेंट होता है. नो प्रोटीन कोड इज फाउंड. जो वायरसेस में होता है ना, वो प्रोटीन कोड नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है. वायरएनए कह रही हूँ, आरएनए होता है. एंड इट वाज नेम्ड एज वायरॉइड. And the RNA of viroid was of low molecular weight. तो जो viroid का RNA होता है उसका molecular weight बहुत कम होता है. ठीक है. In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. जो protein होता है ना, abnormally folded protein होता है, उससे infectious neurological diseases हो रही थी. जो एजेंट था उसका abnormally folded protein था. The agent was similar in size to viruses. तो उसका साइज जो है वायरसेस के सिमिलर था, and these agents were known as prions. ठीक है. So the most notable disease caused by the prions were bovine spongiform encephalopathy. तो ये आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. It was commonly called as mad cow disease. बाकी इसका नाम था bovine spongiform encephalopathy, and it is caused in the cattle, and its analogous variant that is caused in humans is the Jacob diseases. तो इन दो डिजीजेस को आप याद कर लो और प्रायॉन्स के बारे में बात कर लो. दैट इज abnormally folded होते हैं,
साइज वायरसेस के बराबर होता है। वायरॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ फ्री आरएनए होते हैं, उसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं होता है। नाउ वी विल कवर लाइकेंस, जो मैंने आपको भी बताया भी था स्टार्टिंग में कि जो फंजाई होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, इधर विद द एल्गी दैट इज लाइकेंस और विद द हायर प्लांट्स की रूट्स दैट इज माइकोराइजा. So lichens are symbiotic associations, that is mutually useful associations between algae and fungi. So the algal component is known as phycobion and fungal component is known as mycobion. तो जो उसमें आपका एल्गी का कंपोनेंट होगा ना, इट इज फाइकोबायोन, एंड फंजाई का कंपोनेंट जो होता है लाइकेन में, इट इज माइकोबायोन. माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, तो माइको माइको इज फॉर फंजाई, ठीक है. And it is autotrophic and heterotrophic respectively. So algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. तो म्यूचुअली यूजफुल था ना. तो जो एल्गी है वो फूड बना रहा है फंजाई के लिए, क्योंकि एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जो फंजाई हैं वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं एल्गी को और मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है. सो इट इज म्यूचुअली यूजफुल रिलेशनशिप और symbiotic association. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. मतलब आप उनको ऐसे देख के ये नहीं बता सकते कि इसमें दो दो अलग अलग एल्गी है, फंजाई है. They are very very closely associated. And lichens are very good pollution indicators, that is they do not grow in the polluted areas. ठीक है. So lichens are the pollution indicators. तो लाइकेंस जहाँ पे पोल्यूशन होता है ना, वहाँ लाइकेंस नहीं पाए जाते हैं. तो अगर आपको लाइकेंस कहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इट्स अ pollution free place. So that's it for the chapter. Now we are done with this chapter, biological classification. Monera protista in another video, fungi and viruses, viroids, lichens and prions. In this video we have covered the entire chapter. Now we'll be moving to the next chapter in the next video. So if you like the video, please share it with your friends and don't forget to like it. Also अगर कोई queries हैं तो उसको आप comment section में डाल सकते हैं. And subscribe the channel for more such amazing videos. Bye bye. Have a nice day.